गुड मॉर्निंग स्टूडेंट राजे आप LPP ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ, ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ z ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 9x + 10y 9x + 2y ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਤੇ x + y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ x - 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਫਸਟ ਇਨਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ इक्वल टू 0 रखिया, 0 x ਨੂੰ 0 पुट किया, फिर पॉइंट्स कटे, फिर अपने सिलेक्ट द आर्बिट्री पॉइंट किया। सिलेक्ट द जो आर्बिट्री पॉइंट करांगे x भी 0 y भी 0 0 ग्रेटर दैन 20 अपने को डज नॉट सैटिस्फाई, ये सैटिस्फाई नहीं करूँगा। सिमिलरली फिर आ इक्वेशन चुकूँगा, इनू भी सिलेक्ट द आर्बिट्री सॉरी पहला कन्वर्ट करांगे इक्वेशन के, फिर x ਨੂੰ पुट करांगे 0 y की वैल्यू, फिर y ਨੂੰ 0 पुट करूँगा x की वैल्यू। सिलेक्ट द आर्बिट्री पॉइंट ऊपर पुट करांगे अपने को, फिर आप चैक करांगे 0 लेस दैन 9 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ x - 2y = 0। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ y ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, y ਪੁੱਟ ਕਰ y ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ x ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ y ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ y ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ x ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 0 20 ਸੌਰੀ 0 0 ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤੇ 0। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ ਰਾਜੇ, 0 ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ x ਨੂੰ 1 ਤੇ y ਨੂੰ 1, ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ x 0 ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੀ y 0 ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ 1 2 2 3, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 - 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵਰ ਕੀ ਆਊਗਾ -1 -1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਤਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। x ਨੂੰ ਤੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ 0 ਨਹੀਂ, 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ। हाँ जी आ इक्वेशन है ये नहीं सैटिस्फाई कर रही सी, तो आह इक्वेशन है इदा तुहानूं पता उपरले पासे शेड होगा। ठीक है जी। आह अपने को सैटिस्फाई कर रहा सीगा, तो ये अपने को निचले पासे शेड होगा। ठीक है जी। आह जो सेंटर से जा रहा है ये भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इधर हो जाऊगा। तो हुण वो बॉक्स लभना जिथों तीनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है। तो पहला आप ये चेक करांगे, ये आ तो सैटिस्फाई कर रहा है, आ भी सैटिस्फाई कर रहा है, पर आ नहीं सैटिस्फाई कर रहा, ये बॉक्स नहीं दे सकते। फिर आपने आ बॉक्स दिता, आ देखो ये अपने को आ भी सैटिस्फाई कर रहा है, आ भी सैटिस्फाई कर रहा है, तो अपने को आ भी सैटिस्फाई कर रहा है। फिर आह आप शेड करना, फिर आह आह तो आह तुहाडे कोल कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उमें ही अपने को शेड किया, आह आह तो आह कॉर्नर पॉइंट कड्डे, फिर वो वैल्यूज आप मैक्सिमाइज पुट किया, जिते मैक्सिमम आई वो तुहाडा आंसर है। क्लीयर होया राजे दे विच कि अपने कोल जे इहो जिहा केस आ जाए तो अपने कोल आर्बिट्री पॉइंट नहीं पुट करना, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x ਨੂੰ 1 ਤੇ y ਨੂੰ 1, वो पुट करके देखो जे सैटिस्फाई कर रहा था अपने को टूवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं सैटिस्फाई कर रहा था अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जे सैटिस्फाई करता तो मैं नीचे ਨੂੰ करदा, इधर ਨੂੰ करदा। तो क्लीयर होया राजे टाइप। इसी तरह नैक्सट टाइप अपने को यह है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x + 2y राजे, x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, 3x + 5y लेस दैन 15 है, तो x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। वही सेम कन्वर्ट फस्ट इनटू इक्वेशन, इनू आप इक्वेशन च कन्वर्ट किया, इनू भी इक्वेशन च कन्वर्ट किया, पॉइंट्स कड्डे, सिलेक्ट द आर्बिट्री पॉइंट। आ देखो जो आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करांगे 0 ग्रेटर दैन 8 सैटिस्फाई नहीं कर रहा, इट डज नॉट सैटिस्फाई, 0 लेस दैन 15 इट सैटिस्फाई। तो एक अपने को सैटिस्फाई कर रहा है, एक अपने को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। अपने को देर इज़ नो कॉमन पेयर, ये कोई ये कॉमन नहीं है। तो अपने को एक आह इहदा जिहड़ा है उपरले पासे शेड होगा, इहदा अपने को किहड़ा है निचले पासे शेड होगा। ठीक है जी। आ उपरले पासे तो यह अपने को निचले पासे, कोई फीजिबल रीजन नहीं है, तो इहदा अपने को कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके। तो नैक्सट अपने को अगली टाइप
थर्ड टाइप है तो कॉमन पार्ट जो नहीं आता तो कोई फीजिबल सोल्यूशन नहीं होता तो उत्थे आंसर छड्ड देना ना मैक्सिमम करना ना ही अपने मिनिमम करना राजे ये थर्ड टाइप है ये अनबाउंडेड सोल्यूशन लिए तो ये सब तो पहला की करना है आ अपने को फर्स्ट पॉइंट सॉरी आह अपने को मिनिमम पूछी कंडीशन आ अपने को कंडीशन दित्तियां हुई ने इनू फर्स्ट मान लिया इनू सैकेंड मान लिया इनू थर्ड पहला तो प्रोसैस वही करना फर्स्ट सैकेंड थर्ड कन्वर्ट किया आरबिटरी पॉइंट सिलेक्ट कराए उहदे अकॉर्डिंग आ पैटर्न फॉलो होया पहला तो सारा काम होया कि तुसी की किया तिना इक्वेशन कन्वर्ट किया उन्होंने सिलेक्ट द आरबिटरी पॉइंट किया तो अपने को सोल्व करना स्टार्ट किया अपने को हाँ जी हुण आप शेडेड पोर्शन किवें करना तो सब तो पहला आ इक्वेशन है आ इक्वेशन का तो पहले शेडेड पोर्शन किवें कढोगे आह सैटिस्फाई नहीं कर रही सी तो पहले रफ ड्रा कर लिया करो ये इस तरह से होगा राइट ये भी सैटिस्फाई नहीं कर रही सी अपने को इहदा भी एवें शेड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये सैटिस्फाई कर रही है तो इहदा टूवर्ड्स द ओरिजिन तो आप देख रहे हैं आ सारा पोर्शन जो है शेड होगा जी तो आ सारा शेड कर लेना फिर तुहाडे कॉर्नर पॉइंट दिस कॉर्नर पॉइंट दिस कॉर्नर पॉइंट एंड दिस कॉर्नर पॉइंट ये तुहाडे कोल कॉर्नर पॉइंट्स आउणगे तो आह ठीक है जी फिर आ कॉर्नर पॉइंट कर लेना 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 फिर इनू टेबल ते प्लॉट करना टेबल ते तुसीं प्लॉट करोगे तो अपने कोल मिनिमम वैल्यू -300 आएगा जी आ गई -300 बट राजे ये -300 तुहाडी मिनिमम वैल्यू है या नहीं ये आपां नूं अनदर मैथड दे नाल सोल्व करना पैना क्यों क्योंकि अपने कोल ये सोल्यूशन जिहड़ा है अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो जो अनबाउंडेड सोल्यूशन होंदा जी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आप क्लीयर नहीं होंगे कि यह मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है क्यों क्योंकि अनबाउंडेड के होर भी कई वैल्यूज हो सकती हैं जिद्द मिनिमम या मैक्सिमम आ जाता हुण तक आप जिन्ने भी सोल्यूशन करते आए हैं वो बाउंडेड सीगा जी तो ये जे मिनिमम मैक्सिमम आती सी तो बस वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आती सी बट जे अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो जी तुहाडी मिनिमम वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू है वो आप अलग पैटर्न करांगे क्यों क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया अनबाउंडेड सोल्यूशन ये आप क्लैरीफाई नहीं होंदा कि उसी ते मिनिमम आएगी होर भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिते वो मिनिमम ना हो क्यों क्योंकि अनबाउंडेड सोल्यूशन फिर आप की करते हैं एक मैं नोट लिखवाया होया फ्रॉम दिस टेबल वी ऑब्जर्व दैट -300 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेट बट द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड सो -300 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू फिर आप एक मैथड फॉलो करते आ मैथड है जी ये मैक्सीमाइज लिए कि जो यह जी कंडीशन आ जाए जो मैक्सीमाइज क्या हो AX + BY तो तुम पहले उस इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे AX + BY > M ठीक है जी फिर जो मिनीमाइज लिया जाए तो वो कंडीशन को कन्वर्ट करोगे AX + BY <M पहले इस इक्वेशन को सोल्व करांगे आप मिनीमाइज वाला केस होए तो आप AX + BY <M लेना है मैक्सीमाइज वाला केस होए तो AX + BY > M लेना है फिर तुम की करोगे पहले AX + BY हूँ क्योंकि मिनीमाइज वाला केस है तो आप इन्हें सोल्व करना स्टार्ट करते हैं AX + BY <M ए की होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैं बार बार कह रहा ए आ होगा बी आ होगा आ तुसी ए ते बी पुट करते M जिते मिनिमम है कितने है -300 इनू सोल्व किया तुसी इन्हें सोल्व कराया माड़ा जा 10 कॉमन कर लिया आ इक्वेशन सेम उमें सोल्व करना है किमें सोल्व करना है x ते y की वैल्यू कटनी है कड्डी x ते y की वैल्यू अपने को फिर सिलेक्ट द आरबिटरी पॉइंट सिलेक्ट द आरबिटरी पॉइंट करोगे तो अपने को 0 <-30 ये आया एक ही है अपने को 0 में -30 नहीं होंगे इट डज नॉट सैटिस्फाई ठीक है जी फिर इस इक्वेशन को तुसी प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर तो जो इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर तो तुसी देखोगे कि आ लाइन जी है थोड़ी एवें पास होकर जाएगी ग्राफ के ऊपर करने प्लॉट आ लाइन एवें पास होकर विचों जा रही है ठीक है जी तो आह लाइन तुसी डॉटेड मारनी क्यों क्योंकि अपने को जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तुसी उरे तो आ इक्वेशन के नीचे <= नहीं है जो <= होंदा तो लाइन सॉलिड होंदी है आ जो को एवें होंदा तो लाइन जी है वो डॉटेड होंदी है इस करके आ देखो आ लाइन की इक्वेशन जी मैं आ दी है आह थोड़ी इस तरह पास करके जा रही है विचों हुण रही जी लाइन जे यह लाइन ये पास होकर जा रही है फीजिबल सोल्यूशन के पास होकर जा रही है दैट मीन की होगा राजे कि ये होर भी मिनिमम वैल्यूज होणगियां सो जेड मिनिमम जो -300 ते आया यह मिनिमम वैल्यू नहीं है जे यह लाइन मान लो अपने को इधरों पास कर फीजिबल रीजन तो बाहर पास करके चली जाती है इधरों पास करके चली जाती है फीजिबल रीजन के नहीं पास होकर जाती फिर आप कह सकते थे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है क्लीयर हुई गल अनबाउंडेड सोल्यूशन लिए राजे आप क्लैरीफाई नहीं होंगे कॉर्नर पॉइंट्स जोड़े आते होंगे ने कि वह मिनिमम है या मैक्सीमम है फिर वो आप करते हैं जो मिनिमम वाला केस है तो AX + BY <M रखते हैं ए तो बी जो होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले लेने M जिते मिनिमम आया हुआ
ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜੇ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ Z ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਬਟ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਟਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸ ਦੇਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ax + by greater than m ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪਲੋਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ m is maximum value of z if open half plane determined by this ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ has no common point with the feasible region, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ z हैज़ नो ਮੈਕਸਿਮਮ, z हैज़ नो ਮਿਨੀਮਮ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਜੇ। ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ ਬਾਉਂਡਡ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਅਨਬਾਉਂਡਡ, ਤੇ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ।